speakers, participants, and my dear students. I welcome you all. We are truly delighted to have you here at inauguration ceremony of Viksit Bharat Youth Parliament 2025. We have our chief guest, Mr. Mahendra Pal Singh, MLA, Pipraich Vidhan Sabha Assembly. Along with him, Srimati Seema Pandey, District Youth Officer, Nehru Yuva Kendra, Gorakhpur, Dr. Ved Prakash Pandey, renowned author and former principal, Kisan PG College, Sevrahi, Kushinagar, Dr. Rakesh Singh, President, Akhil Vidyarthi Bharati Parishad, Gorakh Prant, Gorakhpur, and Assistant Professor, Bapu Degree College, PP Ganj, Gorakhpur, Mr. Radvijay Singh, Chief Operation Manager, Gorakhpur, Professor Rajnikant Pandey, Professor Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, and former Vice Chancellor, Siddharth University. We have our Vice Chancellor, Dr. Surendra Singh, who is former General Director of India, Dr. Pradeep Kumar Rao, Registrar, sir. Yogi Gorakhnath University to come forward for Saraswati Vandana. अज्ञानता से हमें तार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। तू स्वर्ग की देवी है, संगीत तुझसे हर शब्द तेरा है, हर गीत तुझसे। हम हैं अकेले, हम हैं अधूरे, तेरी शरण में हमें प्यार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, मुनियों ने समझे है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। मुनियों ने समझी है, गुनियों ने जानी, वेदों की भाषा, पुराणों की वाणी। हम भी तो समझे, हम भी तो जाने, विद्या का हमको अधिकार दे माँ, हे शारदे माँ, हे शारदे माँ। अज्ञानता से हमें तार दे माँ, तू श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे।
श्वेत वर्णी कमल पे विराजे, हाथों में वीणा मुकुट सर पे साजे। मन से हमारे मिटा दे अंधेरे, उजालों का हमको संसार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। हे शारदे माँ, हे शारदे माँ, अज्ञानता से हमें तार दे माँ। Get ready for national anthem, please. जय जन मन अधिनायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। पंजाब सिंध गुजरात मराठा द्राविड़ उत्कल बंगा, विंध्य हिमाचल यमुना गंगा, उच्छल जलधि तरंगा। तव शुभ नामे जागे, तव शुभ आशीष मागे, गाहे तब जय गाथा। जन गण मंगलदायक, जय हे भारत भाग्य विधाता। जय हे, जय हे, जय हे, जय 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 हे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की, वंदे वंदे वंदे। थैंक यू। This is an exciting gathering of brilliant minds, leaders, and professionals from all around. It is both an honor and a privilege to stand before you today to talk about a dream that is shared by all of us, the dream of Viksit Bharat, a developed India. We, as a nation, have come a long way since independence from a country that struggled with poverty, illiteracy, and underdevelopment. India has evolved into one of the fastest growing economies in the world. But the journey of becoming a developed India is not just about economic progress, it is about shaping a future where every citizen has access to opportunities, where poverty and inequality are things of the past, and where every individual can live a life of dignity and prosperity. Now, according to our Indian tradition, Atithi Devo Bhava, I would like to invite our Registrar Sir, Dr. Pradeep Rao, to come and facilitate our Chief Guest, Mr. Mahendra Pal Singh, MLA, Vidhan Sabha. I would further like to request Registrar Sir to facilitate our Vice Chancellor, Dr. Surendra Singh. He is former Drug Controller General of India. I request Sir to facilitate Dr. Ved Prakash Pandey, former Principal, Kisan PG College, Sarahi, Kushinagar.
I request Sir to facilitate Dr. Rakesh Singh, President, Akhil Vidyarthi Bharati Parishad, Gorakh Prant, and Assistant Professor, Bapu Degree College, PP Ganj, Gorakhpur. I request Registrar Sir to facilitate Mr. Radvijay Singh, Chief Operation Manager, Gorakhpur. I request Registrar Sir to facilitate Professor Rajnikant Pandey, Professor. I request Sir to facilitate Dr. Surendra Singh, Vice Chancellor, Mahayogi Gorakhnath University. I request Sir to facilitate Seema Pandey, ma'am. Now I invite Dr. Akhilesh Kumar Dubey, Program Coordinator, NSS, to come and give welcome speech. मंच पे आसीन इस सभागार में उपस्थित हम सभी के बीच में पिपराइच विधानसभा के विधायक माननीय श्री महेंद्र पाल सिंह सर, जिन्होंने अपने व्यस्ततम समय से इस विश्वविद्यालय परिवार के लिए समय निकाला। सर, मैं आपको हृदय की गहराइयों के साथ आभार व्यक्त करता हूं और स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। कार्यक्रम में मंच पे उपस्थित प्रोफेसर रजनीकांत सर, जो सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर एवं इस समय आचार्य दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय, सर मैं आपका हृदय की गहराइयों के साथ स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पे आसीन श्री रणविजय सिंह सर, जो पूर्व प्रमुख परिचालन प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर के रहे हैं, आप सर का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पे आसीन आपके बगल में विराजमान हम सभी हमारे विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति जी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह सर का मैं स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका सूक्ष्म मार्गदर्शन हम सभी को हमेशा प्रेरणा देता है। मंच पे आसीन अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के प्रांत अध्यक्ष डॉक्टर राकेश सिंह सर, जिन्होंने हमारे विश्वविद्यालय का निमंत्रण स्वीकार किया, आपका भी सर स्वागत अभिनंदन है। मंच पे आसीन हम सभी के बीच में डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे सर, जो पूर्व प्राचार्य किसान पीजी कॉलेज सेवरही के हैं। सर का घर मूलतः हमारे विश्वविद्यालय के 4 किलोमीटर की रेंज में है। सर का समय समय पे जब भी हमें आवश्यकता होती है, इस विश्वविद्यालय परिवार को आशीर्वाद देने के लिए हमेशा तत्पर और तैयार रहते हैं। इस आशय के साथ सर का स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच पे आसीन NYK नेहरू युवा केंद्र संगठन की युवा अधिकारी, जिला युवा अधिकारी श्रीमती सीमा पांडे मैम का भी स्वागत अभिनंदन करता हूं। मंच के सम्मुख बैठे हमारे विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार डॉक्टर प्रदीप कुमार राव सर का, जिनके निर्देशन में यह सब कार्य युवा संसद का के संपन्न हो रहा है, मैं सर का स्वागत अभिनंदन करता हूं। विभिन्न संकायों के हमारे विभागाध्यक्ष, अधिष्ठाता, प्राचार्य एवं इस सभागार में जो भी युवा संसद के प्रतिभागी और इस हमारे गणमान्य अतिथि और प्यारे विद्यार्थियों, जैसा कि आज हम एक विशेष पर्पज जो माननीय प्रधानमंत्री जी का एक उद्देश्य है कि युवा हमारे राष्ट्र के निर्माण में एक सहयोग प्रदान करें, उनके विचारों से देश की एक अलग नींव की धरा रखी जाए, इस विचार से उन्होंने
2017 में एक परिकल्पना ली कि युवाओं को किस प्रकार से हम समाज के उत्थान में आगे ले आ सकते हैं। इस परिकल्पना को साकार करने के लिए उन्होंने युवा संसद की परिकल्पना दी और युवा संसद की 2025 की परिकल्पना को 3 स्तर में बांटा गया है। प्रथम स्तर पे विद्यार्थी अपनी 1 मिनट की वीडियो बना के माई भारत पोर्टल, जो पूरे भारतवर्ष के युवाओं को एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर जोड़ने के लिए बनाया गया है, उस प्लेटफॉर्म पे युवा अपनी 1 मिनट की वीडियो अपलोड किया है। उस अपलोड वीडियो को एक स्क्रीनिंग कमेटी के माध्यम से स्क्रीनिंग करके उनमें से कुल 150 युवाओं का चयन करके इस विश्वविद्यालय में जनपद स्तर पे, इस जनपद में नोडल जनपद गोरखपुर में 4 जनपद को समाहित किया गया है, जिसमें कुशीनगर, संत कबीर नगर, महाराजगंज और गोरखपुर जिले हैं। उसमें से चयनित आज के युवा संसद 2025 में कुल 84 प्रतिभागी आज इस मंच पे अपना विचार व्यक्त करेंगे, जिस विचार के लिए विषय जो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में जो दिया गया है वह है 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव। और उसका परिप्रेक्ष्य जो रखा गया है विकसित भारत के द्वारा हम किस प्रकार से विकसित भारत बनाने में मार्ग हम तैयार कर सकते हैं। ऐसी विचारधारा के लिए सभी युवा अपना अपना वक्तव्य देंगे और उसमें हमारे निर्णायक मंडल के रूप में आप सभी उपस्थित रहेंगे। तो ऐसे में आप इस कार्यक्रम की योजना का निर्माण करके माननीय प्रधानमंत्री जी की आकांक्षाओं को यहाँ से चयन करके स्टेट लेवल पे 10 विद्यार्थियों का चयन किया जाना है और उसके बाद वो उत्तर प्रदेश की संसद में उनका व्याख्यान होगा, वक्तव्य रखा जाएगा। उसके बाद वहां से चयन करके हम आगे राष्ट्रीय स्तर पे युवा संसद में बच्चे प्रतिभाग करेंगे। इस कार्यक्रम के जनपद स्तरीय कार्यक्रम में आप मंच पे आसीन पुनः सभी अतिथियों का मैं राष्ट्रीय सेवा योजना समन्वयक एवं विश्वविद्यालय पूरे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय की तरफ से आप सभी को मैं सादर अभिवादन और स्वागत करता हूं। मंचासीन अतिथियों को पुनः स्वागत के साथ मैं अपनी वाणी को विराम दूंगा। जय हिंद। Thank you, sir. Please join me in welcoming Mrs. Seema Pandey, District Youth Officer, Nehru Yuva Kendra, Gorakhpur. Ma'am, please come and share your wisdom. महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर एवं नेहरू युवा केंद्र संगठन के द्वारा आज आयोजित विकसित भारत युवा संसद में आज के हमारे मुख्य अतिथि माननीय महेंद्र पाल सिंह, विधायक पिपराइच विधानसभा गोरखपुर से को मैं आपको स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित माननीय कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, आपका मैं स्वागत, अभिनंदन एवं वंदन करती हूँ। इस कार्यक्रम में उपस्थित प्रोफेसर रजनीकांत पांडे, आचार्य दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय एवं पूर्व कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर, आपका मैं इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन करती हूँ। श्री रणविजय सिंह, प्रमुख परिचालन प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर भारत सरकार, मैं आज के इस कार्यक्रम में आपका स्वागत, अभिनंदन वंदन करती हूँ। डॉक्टर राकेश सिंह, प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरज प्रांत गोरखपुर, आपका इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन वंदन है। प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, पूर्व प्राचार्य किसान पीजी कॉलेज से बरेही कुशीनगर, आपका आज इस कार्यक्रम में स्वागत, अभिनंदन वंदन है। जैसा कि अभी अखिलेश जी ने बताया कि विकसित भारत यूथ पार्लियामेंट, जिसमें आप सभी उपस्थित हुए हैं, चारों जनपद के विद्यार्थीगण इस कार्यक्रम में उपस्थित हुए हैं। आपको आज इस कार्यक्रम में 1 मिनट का वीडियो के उपलब्ध 1 मिनट का जो वीडियो आप लोगों ने माई भारत पोर्टल पे अपलोड किया था, उसके बाद स्क्रीनिंग कमेटी द्वारा स्क्रीन करके आपको सेलेक्ट किया गया है। ये आप सभी के लिए एवं हम सभी के लिए बहुत ही गौरव का विषय है कि आप इस जनपद को रिप्रेजेंट करते हुए आगे आप विधानसभा
लखनऊ में जाकर उपस्थित होकर अपने विचार व्यक्त करेंगे। उसके बाद आप सीधे पार्लियामेंट में जाके अपने विचार व्यक्त करेंगे। आप सभी को मेरी तरफ से बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। मुझे पूरा उम्मीद है कि आप जरूर संसद में जाके अपने जनपद का नाम वहां जरूर रखेंगे और अपने विचार अच्छी तरीके से व्यक्त करेंगे। एक बार पुनः मंच पे उपस्थित एवं सभी विद्यार्थी गणों को स्वागत, अभिनंदन, वंदन करते हुए मैं आप सभी का आभार व्यक्त करती हूँ कि आप यहाँ उपस्थित हुए और मुझे पूरा उम्मीद है कि आगे इस कार्यक्रम में आप सभी अपने विचार अच्छी तरह से व्यक्त करेंगे। धन्यवाद। Thank you, ma'am. I invite Dr. Ved Prakash Pandey, renowned author and former principal, Kisan PG College, Sivrahi, Kushinagar, to come and share his vision with us. इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे हमारे सम्मानित जनप्रतिनिधि माननीय महेंद्र पाल सिंह जी, इस अत्यंत प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय के आदरणीय कुलपति जी, हमारे मित्र प्रोफेसर रजनीकांत जी, पूर्व कुलपति, मंच पर बैठे हुए हमारे सभी आदरणीय मित्रों, बहन, इस विश्वविद्यालय के कुल सचिव मेरे परम आत्मीय डॉक्टर राव साहब, यहाँ के आचार्यगण, प्रशासनिक अधिकारीगण, कर्मचारीगण, बाहर से आए हुए सभी जिलों के प्रतिभागीगण, इस विश्वविद्यालय में अध्ययनरत प्रिय छात्राओं एवं छात्रों, हमारे ऋषियों द्वारा परिकल्पित मानवीय जीवन के जीवेम शरदः शतम के हिसाब से 100 वर्ष के सक्रिय कार्यकाल में जो महत्व यौवन का होता है, जिसे मोटी मोटा 25 से 50 कहा गया है, जिसे अब इस विज्ञान के विकसित कालखंड में मेरे जैसा एक नाचीज 20 से 60 तक प्रसारित करता है, तो जैसे मानवीय जीवन के 100 वर्षों में 20 से 60 वर्ष का सक्रिय जीवन काल और इसका संपूर्ण आवेग के साथ प्रज्वलन, साधारण शब्दों में कहूं तो अपने पुरुषार्थ का सम्यक जागरण जैसे कोई मनुष्य कर लेता है, तो उसका न केवल वर्तमान बन जाता है, अपितु भारतीय दर्शन के हिसाब से अगले अच्छे जीवन की पृष्ठभूमि भी तैयार हो जाती है। भोग का कर्म, कर्म का भोग, यही जड़ का चेतन आनंद हमारे यहाँ जो कहा गया है, जो भारतीय दार्शनिक पृष्ठभूमि है, उसमें हम यहाँ जो अच्छा करते हैं उसका अगले जन्म में भी हमें प्रतिफल मिलता है। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतं कर्म शुभाशुभम के अनुसार अगर हमने 20 से 60 वर्ष के जीवन को संपूर्ण आग के साथ जी लिया, संपूर्ण शक्तियों के साथ प्रतिभाषित कर लिया अपने को, तो हमारा वर्तमान भी सुंदर होता है, भविष्य भी सुंदर होता है, अगला जन्म भी सुंदर होता है। मित्रों, ठीक इसी तरह से होने को तो इस दुनिया में करीब 8 अरब लोग हैं, हमारे अपने देश में भी 145 करोड़ लोग हैं, लेकिन इसमें जो युवा शक्ति है वो वैसे ही है जैसे 100 वर्ष के जीवन के प्रवाह में यौवन काल होता है। तो जो यौवन काल का महत्व मानवीय जीवन के 100 वर्षों के भीतर है, वही सारे संसार के युवकों का वो कालखंड जो युवापन कहलाता है वो होता है। अगर उसमें युवा जाग जाता है और अपनी संपूर्ण प्रतिभा, संपूर्ण क्षमता का विनियोग कर लेता है, तो कोई भी देश, न केवल भारतवर्ष अपितु कोई भी देश बेहस उठता है, खिल उठता है, उसका सारा वैभव संप्रसारित हो जाता है। मैं इतने कम समय में इससे ज्यादा कुछ कहने में इस समय असमर्थ पा रहा हूं। हाँ, एक बुजुर्ग के नाते शुभकामना व्यक्त करता हूं और उन भावी वक्ताओं का स्वागत करते हुए, सम्मान करते हुए इस विश्वविद्यालय के इस धरती पर ये आशा करता हूं कि जीवन के जैसे पक्ष विपक्ष होते हैं मित्रों, सुबह शाम, रात दिन, सुख दुख, उत्थान पतन, ऐसे ही किसी भी विषय का पक्ष और विपक्ष होता है। भारतीय लोकतंत्र या कहीं का भी दुनिया का लोकतंत्र है, वो सफल तभी है
जब उसके पास मजबूत पक्ष और मजबूत प्रतिपक्ष भी होता है। मुझे खुशी होगी एक श्रोता के रूप में, एक निर्णायक के रूप में, एक वृद्ध के रूप में, जब हमारे तमाम जनपदों से आए हुए वक्तागण अपने विषय को के पक्ष को और प्रतिपक्ष को बखूबी और पूरी मजबूती और पूरी क्षमता के साथ यहाँ उपस्थित करेंगे, तो मैं तालियां बजा के न केवल उनका अभिनंदन करूंगा अपितु आनंद का अनुभव भी करूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपने जो आदर प्यार दिया उसके लिए आभार प्रकट करता हूँ। धन्यवाद। Thank you, sir, for enlightening us with your words. I invite Dr. Rakesh Singh, President, Akhil Vidyarthi Bharatiya Parishad, Goraksh Prant, Gorakhpur, and Assistant Professor, Bapu Degree College, PP Ganj, Gorakhpur. Sir, please share your words. विकसित भारत युवा संसद 2025 के उस उद्घाटन कार्यक्रम में मंच पर उपस्थित आज के मुख्य अतिथि माननीय विधायक श्री महेंद्र पाल सिंह जी, इस विश्वविद्यालय के वाइस चांसलर आदरणीय डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, मंच पर उपस्थित गोरखपुर विश्वविद्यालय के आचार्य प्रोफेसर रंजीकांत पांडे जी, मंच पर उपस्थित आदरणीय श्री रणविजय सिंह जी, श्रीमती सीमा पांडे जी, और हम सभी के बीच प्रतिष्ठित साहित्यकार के रूप में उपस्थित डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी, इस सभागार में इस विश्वविद्यालय के रजिस्ट्रार आदरणीय प्रदीप राव सर, और इस सभागार में उपस्थित यहाँ की उपस्थित युवा तरुणाई छात्र शक्ति, आप सभी का अभिनंदन है। विकसित भारत युवा संसद की जो संकल्पना है, जिसको लेकर के ये कार्यक्रम आयोजित हो रहा है, ये संकल्पना प्रधानमंत्री मोदी जी ने 2017 में कैसे विकसित भारत के संकल्प को साकार करने के लिए देश की छात्र शक्ति, युवा शक्ति का किस प्रकार से उसमें संयोजन हो सकता है, किस प्रकार योगदान हो सकता है, उसको रख करके उन्होंने एक आह्वान किया था पूरे देश से कि 1 लाख युवा नेतृत्व पूरे देश में खड़ा होंगे जो विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर आज भारत की जो छवि, जिसकी ब्रांडिंग आदरणीय प्रधानमंत्री मोदी जी कर रहे हैं, जिसको हम एकेडमिक जगत में अर्थशास्त्री जिसको डेमोग्राफिक डिविडेंड के नाम से, जनांकीय लाभांश के नाम से जानते हैं, कि भारत के पास एक युवा शक्ति है जिसका लाभ भारत को विकसित भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में हम उसको ले सकते हैं। इसीलिए देश की युवा शक्ति का संयोजन करने के लिए स्किल इंडिया मूवमेंट एक अभियान सरकार ने चलाया कि उस युवा शक्ति का रचनात्मक दिशा में किस प्रकार से प्रयोग करके विकसित भारत के संकल्प को साकार कर सकते हैं। इस दिशा में ये कार्यक्रम पूरे देश भर में आयोजित हो रहे हैं। दुनिया में जितने बड़े परिवर्तन हुए हैं, जितनी भी क्रांतियां हुई हैं, सबका नेतृत्व युवाओं ने किया है। और आजादी के बाद, आजादी के समय भी विकसित भारत के निर्माण में, एक समृद्ध और शक्तिशाली राष्ट्र के निर्माण में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसको लेकर के निरंतर प्रयास हुए हैं। उसी दिशा में ये आज का एक कार्यक्रम है जिसको लेकर के ये कार्यक्रम हो रहा है। एक अभिज्ञान शाकुंतलम का एक प्रसंग है। राजा दुष्यंत, उसके 5वें अंक का एक प्रसंग है जिसको मैं उल्लेख जिसका यहां करूंगा अपनी बात को कनेक्ट करने के लिए। अविश्राम अयम लोकतंत्राधिकार, यानी राज कार्य में विश्राम नहीं हो सकता है। एक बार जब विवाह के बाद राजा ऋषि कर्ण की पुत्री जब दुष्यंत से मिलने के लिए जाती हैं, अपने दो शिष्यों के साथ जो कर्ण भेजते हैं, तो वहां राजा विश्राम के लिए चले गए होते हैं। द्वारपाल और एक वहां पुरोहित उपस्थित होते हैं। वो पहले तो मना करते हैं कि राजा विश्राम कर रहे हैं, तो विश्राम में मिलना उचित नहीं है। फिर उनके दिमाग में विचार आता है कि शास्त्र क्या कहता है।
तो शास्त्र की जिस पंक्ति का मैंने उल्लेख किया है, अविश्राम अयम लोकतंत्राधिकार, कि राजकार्य में विश्राम नहीं होता है। मुझे लगता है इसी संकल्पना को लेकर के जो एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना अवधारणा रखी गई है कि एक राष्ट्र एक चुनाव के माध्यम से किस प्रकार से वित्तीय भार, प्रशासनिक निर्णय और जो परियोजनाएं चलती हैं, विकास की जो परियोजनाएं चलती हैं, चुनाव में एक आचार संहिता का जब लगती है तो एक लंबे समय तक तमाम सारे निर्णय पेंडिंग रहते हैं, एक तरह से पॉलिसी पैरालिसिस की स्थिति रहती है। तो उन सारे पक्षों को ध्यान में रखते हुए ये संकल्पना रखी गई है। ये संकल्पना कोई नई नहीं है, पहले भी देश में 1951-52 के आम चुनाव, फिर 52 के बाद 57, 62, 70 तक जो है एक साथ एक देश एक चुनाव की संकल्पना रही है। तो ये संकल्पना पहले भी रही है। तो ये तमाम इसके पक्ष हैं, वित्तीय पक्ष मैंने कहा है, प्रशासनिक निर्णय, पॉलिसी के निर्णय, ये सारे चीजों को ध्यान में रखते हुए एक राष्ट्र एक चुनाव की संकल्पना को लेकर के देश आगे बढ़ रहा है। और चुनाव आयोग ने भी 1982-83 में इस चीज को प्रस्तावित किया था। मैंने अभी कहा कि विकसित भारत के संकल्प में युवाओं की क्या भूमिका हो सकती है, इसलिए युवाओं को इससे कनेक्ट करने के लिए युवा राष्ट्रीय मुद्दों पर अपना विचार रखे, उनकी क्या अपेक्षा है, उनकी क्या आकांक्षा है, उस आकांक्षा के साथ राष्ट्र तादात्म्य स्थापित करते हुए अपने संकल्प को साकार करने की दिशा में आगे बढ़े। इसीलिए ये कार्यक्रम, आज का ये कार्यक्रम रखा गया है। युवाओं के विचार, नीति निर्माताओं के साथ उनके वार्तालाप और राष्ट्र निर्माण में उनका सार्थक योगदान को लेकर के कार्यक्रम रखा गया है। आप सभी को इस कार्यक्रम को के लिए मेरी तरफ से यहाँ उपस्थित सभी युवाओं को हार्दिक शुभकामनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for your golden words. I would like to invite Mr. Ranvijay Singh, Chief Operation Manager, Gorakhpur, to please come and share your vision with us. आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे इस विश्वविद्यालय के कुलपति श्री सुरेंद्र सिंह जी, मुख्य अतिथि माननीय विधायक पिपराइच महेंद्र पाल सिंह जी, पूर्व कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय डॉक्टर रजनीकांत पांडे जी, मित्र और प्रख्यात साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी, और आज के मेरे सारथी और पथ प्रदर्शक राकेश प्रताप सिंह जी, सीमा पांडे जी, आचार्यगण, कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव जी, मित्रों, देवियों एवं सज्जन, और जिसने मुझे यहाँ बुलाया उस उद्घोषका को भी प्रणाम। कोई भी कार्य करने के लिए लोकतंत्र में पहले जनमत का निर्माण आवश्यक है। आप कोई निर्णय लेते हैं तो उस निर्णय से जनता को सहमत होना, और जनता की यह सहमति संवाद से। जब आप संवाद स्थापित करते हैं जनता के साथ, लोगों के साथ, और उन्हें कन्विंस करते हैं, उन्हें अपनी बात मानने के लिए, तर्कों के आधार पर मानने के लिए जब तैयार करते हैं, तभी कोई भी आपका निर्णय मान्य होता है और उसका विरोध नहीं होता है। जनतंत्र में आपके निर्णय लोगों द्वारा मान्य होने चाहिए, और अगर वो लोगों द्वारा मान्य नहीं है
तो उस निर्णय को पलटना ही पड़ता है, वो लागू नहीं हो सकते हैं। जनता जब अगर कोई निर्णय नहीं मानती है तो उस निर्णय को वो पलट देती है। तो वन नेशन एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में जो ये जनमत तैयार किया जा रहा है, चाहे भारत सरकार के किसी भी विभाग के माध्यम से, वो एक अच्छी पहल है। और उसमें युवा लोग, क्योंकि यही आगे जनमत बनाते हैं, लोगों में यही मुखर होते हैं, समाज में यही मुखर होते हैं। लेकिन कोई निर्णय जब लिया जाता है तो उसके दो पक्ष होते हैं, दो प्रमुख पक्षों पर जो अवश्य ध्यान देना चाहिए। एक तो सामाजिक पक्ष, दूसरा आर्थिक पक्ष। राजनीति तो समाज और अर्थ से निकल के आती है, अपने आप निकल के आ जाएगी। 1952 में स्वतंत्र भारत का पहला चुनाव हुआ, उससे पहले 1937 में भी चुनाव हो चुका था, लेकिन स्वतंत्र भारत का जो पहला चुनाव हुआ 1952 में हुआ। 1952 में राज्यों की विधानसभाएं 15 राज्य थे, एक लोकसभा थी। राज्यों की विधानसभाओं और लोकसभा का एक साथ चुनाव हुआ। 1957 में एक साथ चुनाव हुआ। 1967 में जनता ने कुछ इस तरह का निर्णय लिया कि कहीं भी किसी भी तमाम राज्यों में किसी एक दल को बहुमत नहीं दिया। और बहुमत न देने के नाते क्या हुआ कि नई सरकारें बनी, कुछ दिनों में गिर गई, और मध्यावधि चुनाव जिसकी व्यवस्था हमारे संविधान में है वो मध्यावधि चुनाव कराए गए। फिर तो राज्यों विधानसभाओं के चुनाव अलग अलग होने लगे। अब ये जब भी चुनाव होते हैं तो आर्थिक कार्यक्रम, औद्योगिक विकास और किसी भी अन्य तरह का विकास जो है वो रुक जाता है, क्योंकि चुनाव में आचार्य संहिता लगती है। उस आचार्य संहिता के नाते कोई भी विकास का कार्य, नया विकास का कार्य हाथ में लिया नहीं जा सकता है, और पुराने विकास कार्यों की भी गति धीमी पड़ जाती है। आज भारत की इकोनॉमी 4.27 ट्रिलियन डॉलर की है। करीब करीब जो नॉमिनल हमारी वो है जीडीपी है वो 4.27 ट्रिलियन डॉलर है। एक भारतीय प्रति व्यक्ति जो आय है वो करीब $3,000 वार्षिक है, 2930 टू बी प्रिसाइज। एक विकसित राष्ट्र बनने के लिए होना यह चाहिए कि $20,000 प्रति व्यक्ति आय होनी चाहिए, यानी तकरीबन 7 गुना हमारी इकोनॉमी जब बढ़ेगी तब तो हम विकसित राष्ट्र हो पाएंगे। हमारी पीपी परचेजिंग पावर पैरिटी के आधार पर जो हमारा इकोनॉमी है वो $17 ट्रिलियन से ऊपर की है, लेकिन उसका कोई मतलब नहीं होता है। नॉमिनल इकोनॉमी का, नॉमिनल जीडीपी का ही मतलब होता है। तो इसके लिए हमको 8% से ज्यादा ग्रोथ मिलनी चाहिए, और यह विकास जब तक सतत नहीं होगा, निरंतरता के साथ नहीं होगा, अवरुद्ध होता रहेगा, तब तक जो है दिक्कतें आएंगी। यह ग्रोथ रेट हम अचीव नहीं कर पाएंगे। और जब कितना खर्च हुआ पिछले 2024 के इलेक्शन में, आपको पता है कितना खर्च हुआ? पार्टियों ने और सरकार ने मिला के 1,35,000 करोड़ रुपया खर्च किया। ये मूल्य है हमारे प्रजातंत्र का, हमारे जनतंत्र का, जो कि आवश्यक भी है। अब यही अगर विधानसभा और लोकसभा, और विधानसभाओं में और भी सारी विधानसभाओं को ले ले तो और भी खर्चे होते। तो लोकसभा और विधानसभा के दोनों के इलेक्शन एक साथ हो जाएं तो कम से कम हम 1.5 से 2 लाख करोड़ रुपया बचा सकते हैं, जो कि हमारी योजनाओं के लिए, हमारे औद्योगिक विकास के लिए, हमें हमारे कृषि कार्यक्रमों के लिए, हमारे सबसे ज्यादा जानते हैं इस समय क्या
तृतीयक जो हमारे उद्योग हैं उनसे सबसे ज्यादा पैसा हमको आता है। 61 से हमारी टोटल जीडीपी का जो टोटल हमारी आमदनी होती है उसका 61 से 65% तक हर साल हमारे तृतीयक उद्यमों से आता है। हॉस्पिटैलिटी और ये सेक्टर जो है डिजिटल सेक्टर से, कृषि से 17% आता है, 28% आपका करीब 25 से 26% आपका उद्योगों से आता है और निर्माण से। तो इनको बढ़ाने की आवश्यकता है और जब तक हमको हमारे पास पैसा नहीं मिलेगा ये नहीं हो सकते। दूसरी चीज ये है, ये तो आर्थिक पक्ष हो गया, दूसरा है सामाजिक पक्ष। जब भी इलेक्शन होते हैं तो समाज में विभेद उत्पन्न होता है। तो 5 साल में एक ही बार कुछ चीजें ऐसी हों जिनको कि हमें सुलझाने में 2-4 महीने का समय लगे और फिर हम सुलझा लें, तो इसलिए जरूरी है, और ये पहले हुआ भी है, 3 इलेक्शन तक ये हुआ है कि एक साथ चुनाव होते थे। मुझे बड़ी खुशी हुई कि इतनी बड़ी संख्या में लोग बैठे हुए हैं जो इस विषय के संबंध में, इसके पक्ष में लोगों में जनमत बनाने के लिए तैयार हैं और यहां अपनी बात कहने के लिए तैयार हैं। नई बातें आएंगी, केवल आर्थिक और सामाजिक पक्ष नहीं, जनतंत्र में भी। जनतंत्र देखिए, सब जनतंत्र का सबसे जनतंत्र जो कठिन, हमारा बहुत ही परिपक्व जनतंत्र है। इतना परिपक्व लोकतंत्र कहीं का नहीं है, दुनिया में कहीं का इतना परिपक्व लोकतंत्र नहीं है। यहां अब वामपंथ भी है, दक्षिण पंथ भी है, मध्य मार्ग भी है। कोई ऐसा देश दुनिया में नहीं, अमेरिका में वामपंथ नहीं है, कोई ऐसा देश दुनिया में नहीं है जहां इस तरह की इतनी जो है विविधता के साथ दल और दल के लोग और दल के नेता उपस्थित हों, जिनकी भागीदारी हो सरकार में या तंत्र में भागीदारी हो। ये केवल भारत में है। इसको भी बचाए रखने के लिए तंत्र की भागीदारी में जनता की भागीदारी और तंत्र में जनता का विश्वास, जनता जब देखेगी कि अपव्यय हो रहा है तो निश्चित तौर पर उसमें विरोध की भावना उत्पन्न होगी और हमारा लोकतंत्र कमजोर होगा। तो लोकतंत्र की खूबसूरती, लोकतंत्र की मजबूती और लोकतंत्र के आर्थिक माध्यम से आर्थिक विकास को गति देने के लिए यह आवश्यक है कि हम एक साथ चुनाव कराएं, लोकसभा का, विधानसभाओं का, और यहाँ तक कि तृतीयक हमारी, क्योंकि ग्राम स्वराज की भी वो है, और म्युनिसिपैलिटी के चुनाव, नगर निगमों के चुनाव सब एक साथ करा दिए जाए। इससे एक चीज और होगी, एक तरह के लोग आएंगे जिनमें मतैक्य होगा और देश के विकास के बारे में भी मतैक्य होगा। देश के विकास के बारे में, राष्ट्रीय विकास आवश्यक है। रूस के क्यों टुकड़े हुए? राष्ट्रीय विकास असुकृत हो गया था, इसलिए रूस के 13 टुकड़े हो गए। जो देश रूस के साथ थे वो अलग हो गए क्योंकि राष्ट्रीय आर्थिक विकास उनका हो गया था, लोगों को खाने को नहीं मिल रहा था। तो आर्थिक विकास और सामाजिक प्रतिभागिता किसी भी लोकतांत्रिक प्रक्रिया के लिए, लोकतांत्रिक निर्णय के लिए आवश्यक है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई कि इतने लोग यहाँ इस अनुष्ठान में भाग लेने के लिए उपस्थित हुए हैं। मैं यहाँ आके स्वयं गौरवान्वित हूँ और प्रदीप राव जी को धन्यवाद दे रहा हूँ जिन्होंने कि मुझे यहाँ आने का अवसर प्रदान किया। कुलपति महोदय को भी धन्यवाद, क्योंकि उन्होंने भी जरूर हामी भरी होगी तभी मैं यहाँ आ पाया। तो इन सब चीजों बातों के साथ, ये सब बहुत गंभीर बातें थी। आशा है आप इनको ध्यान में रखेंगे और इसके बाद आगे के कार्यक्रम में हम लोग साथ रहेंगे। इसी आशा के साथ मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगा।
धन्यवाद। जय हिंद। Thank you, sir, for enlightening us with your words. Now, I would like to invite Professor Rajnikant Pandey, Deen Dayal Upadhyay, Gorakhpur University, and former Vice Chancellor, Siddharth University. धन्यवाद। महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के माननीय कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि श्री महेंद्र पाल सिंह जी, माननीय विधायक पिपराइच गोरखपुर, श्री रणविजय सिंह जी, मेरे मित्र जिनका नाम है मैं भूल गया रहा हूं, राकेश प्रताप सिंह जी, अचानक अपने लोगों का नाम भूल जाता है, सीमा सिंह जी, और इस विश्वविद्यालय के यशस्वी कुल सचिव और मेरे मित्र राव साहब, बहुत अच्छा लगा युवा शक्ति के बीच में आने का अवसर आपने दिया मुझे, और ऐसे कार्यक्रमों में आने से मेरे मन में एक उत्साह और बढ़ जाता है, और उत्साह इसलिए बढ़ जाता है कि गोरखपुर विश्वविद्यालय में 7 साल मैंने ये कार्यक्रम कराया है युवा संसद का, और न केवल कार्यक्रम कराया है बल्कि पूरे देश में ईस्ट जोन में गोरखपुर विश्वविद्यालय को 3रे नंबर पर पुरस्कार भी दिलाया है। तो जब भी इस तरह का कोई आमंत्रण मुझे मिलता है तो मैं सब कुछ छोड़कर वहां उपस्थित होता हूं, और यह भी आपको बताने के लिए कि उस युवा संसद के कार्यक्रम में आप जो यहाँ इकट्ठा हुए हैं और जो भारत सरकार ये सोच रही है, तो भारत सरकार या प्रधानमंत्री जी का जो के सामने जो चुनौती है, वह चुनौती है भारत के 65% नौजवानों की। इस देश की जनसंख्या में 18 से 25 वर्ष के लोगों की कुल सहभागिता लगभग 60% के आसपास है, और यह बड़ी चुनौती होती है, खासतौर से एक लोकतांत्रिक देश में बड़ी चुनौती होती है, और लोकतांत्रिक देश में भी, एक विकासशील लोकतांत्रिक देश में चुनौती होती है, और विकासशील लोकतांत्रिक देश में भी एक डाइवर्सिटी जहां है, जहां विभिन्नता इतनी है, उस विभिन्नता में एकता को स्थापित करना, यह सबसे बड़ी चुनौती होती है भारत के प्रधानमंत्री के सामने। और उस समय जबकि 60% से ज्यादा लोगों की जनसंख्या नौजवानों की हो, इसलिए यह कार्यक्रम कराया जाता है। क्योंकि इतिहास में जब प्रथम विश्व युद्ध समाप्त हुआ था तो ब्रिटिश प्राइम मिनिस्टर था लॉर्ड जॉर्ज और फ्रांसीसी प्राइम मिनिस्टर था क्लीमेंसो। जर्मनी हार चुका था और जर्मनी पर तमाम तरह की शर्तें लगाई गई थी, युद्ध का अपराधी जर्मनी को घोषित किया गया था, और यह कोशिश किया गया था, वर्साई की संधि हुई थी, बहुत प्रसिद्ध संधि है उसकी, कि जर्मनी को विश्व के रंगमंच पर समाप्त कर दिया जाए। लेकिन लॉर्ड जॉर्ज का यह मानना था, क्योंकि लॉर्ड जॉर्ज एक डेमोक्रेटिक कंट्री का प्राइम मिनिस्टर था, कि किसी देश के अस्तित्व को हम समाप्त नहीं कर सकते। और चूंकि वो एक मध्यम नीति लेकर के चलता था, एक व्यवसायी देश है ब्रिटेन, तो उसको लगता था कि हम जर्मनी को फ्रांस के लिए क्यों समाप्त करें, क्योंकि फ्रांस से ही हमारी चुनौती है, नेपोलियन को हम ही ने रोका था। तो कहता था क्लीमेंसो से कि क्यों आप परेशान होते हो, जर्मनी को तो हम लोगों ने लगभग समाप्त कर दिया है, उसकी सारी शक्तियां छीन ली हैं, आर्थिक छीन ली हैं, सैनिक छीन ली। तो कहता था वो कि हम जर्मनी के उससे नहीं डरते हैं, हम जर्मनी के युवा शक्ति से डरते हैं। जर्मनी में 60% ज्यादा युवा हैं और फ्रांस में 60% ज्यादा बूढ़े हैं। जब उन्हें जर्मनी के अपमान को लेकर के कोई आएगा, नेता आगे बढ़ेगा, तो पूरी दुनिया की शांति व्यवस्था को भंग कर देंगे। और यही हुआ दुनिया में जब द्वितीय विश्व युद्ध हुआ। तो यह चुनौती हमारे प्रधानमंत्री के सामने कि हम पॉजिटिव अप्रोच में कैसे इस युवा शक्ति का प्रयोग करें। विकसित भारत का जो संकल्पना है, बहुत ही महत्वाकांक्षी संकल्पना है।
और विकसित भारत की यह महत्वाकांक्षी संकल्पना ग्रामीण इलाकों से निकल कर आएगी। भारत तब तक विकसित नहीं हो सकता है जब तक कि ग्रामीण इलाकों के नौजवानों में संविधान के प्रति प्रेम भाव और निष्ठा न हो। इसलिए जितने लोग यहां बैठे हैं किसी भी डिसिप्लिन के हों, वो साइंस के हो सकते हैं, आर्ट्स के हो सकते हैं, मैनेजमेंट के हो सकते हैं, मेडिकल के हो सकते हैं, सबको भारत का संविधान पढ़ना चाहिए। और भारत को संविधान इसलिए पढ़ना चाहिए कि ये कौन सा ग्रंथ है जो इतनी विभिन्नताओं के बीच एक संविधान खड़ा कर लिया और पूरे देश के लोगों ने उस संविधान को मान लिया और पूरा देश आज भी उस संविधान के प्रति निष्ठाबद्ध है। तो ये चुनौती आपके लिए है। और दूसरी बात जो सबसे महत्वपूर्ण है, जो भारत सरकार चाहती है, ये जो आप कार्यक्रम करेंगे ना, तो इसमें आपका व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा, इस इलाके का व्यक्तित्व उभर कर सामने आएगा, इस इलाके की सोच उभर करके सामने आएगी। हो सकता है कि इनमें बैठा हुआ कोई लड़का इतना अच्छा भाषण दे दे कि रातों रात वो देश का सबसे अच्छा वक्ता घोषित कर दिया जाए। ऐसा असंभव कुछ नहीं है। मैंने जो युवा सांसद कराया था, जो 60 बच्चे थे, आज देश के विभिन्न प्रतिष्ठानों में बहुत सम्मान पूर्वक जीवन जी रहे हैं, उसमें कोई बेकार नहीं है और बहुत ही चर्चित चेहरे हैं इस देश के। तो मैं वो संभावना आप में देख रहा हूं। इस विश्वविद्यालय को इसके लिए मैं बधाई दूंगा कि उन्होंने इन संभावनाओं को खोजा। जो नेहरू युवा केंद्र के सीमा पांडे जी हैं, जो इसको कोऑर्डिनेट कर रही होंगी, ये विश्वविद्यालय जो कोऑर्डिनेट कर रहा है, ये समझिए कि इससे पवित्र कार्य इस देश में हो ही नहीं सकता, क्योंकि आपकी एनर्जी को हमें चैनलाइज करना है। और ये खतरा इसलिए भी है कि तीसरी दुनिया के नौजवानों में सबसे ज्यादा नशे की प्रवृत्ति बढ़ रही है और तीसरी दुनिया का पूरा मार्केट मल्टीनेशनल कंपनियों के नशे का एक व्यापार का सबसे बड़ा अड्डा बन चुका है। और आप जानते हैं कि नशेबाज आदमी, नशाखोर आदमी अल्टीमेटली देश की राष्ट्रीय एकता और अखंडता के लिए सबसे घातक होता है। आप सेना पर जितना खर्च करें, हमारी सरकार की सोच ये है, भारत सरकार की सोच ये है कि हम नौजवानों को ही ऐसा तैयार करें जो मानवीय गरिमा को समझते हो, जो मानवीय मूल्य को समझते हो, जिनके मन में महिलाओं के प्रति सम्मान का भाव हो, जिनके मन में अपने इतिहास के प्रति सम्मान का भाव हो, जिनके मन में अपने देश के प्रति सम्मान का भाव हो, जिनके मन में अपने माता पिता के प्रति सम्मान का भाव हो, जिनके मन में अपने संस्कृति के प्रति सम्मान का भाव हो। क्योंकि नशेबाज आदमी का कोई भाव इन मान्यताओं में नहीं रहता है। इसलिए जब इस संसद से आप निकल करके जाएंगे तो निश्चित रूप से आपको लगेगा कि आपके व्यक्तित्व में आप जीते हारे, आपको पुरस्कार मिले न मिले, आप इस मैदान में आए हैं। महत्वपूर्ण है कि मैदान में आना, और मैदान में जब आए हैं तो मुझे पूरा विश्वास है कि आपका भविष्य बहुत उज्जवल है। पुनः मैं इस विश्वविद्यालय को बधाई देता हूं कि बहुत ही एक सकारात्मक कार्यक्रम लेकर के वो आपके बीच आए हैं। और आप लोगों से मैं जरूर ये बात कहूंगा कि आप जब भी अपने आपका कार्यक्रम शुरू हो तो अनुशासन, संवैधानिक प्रतिबद्धता, मानवीय मूल्य, इसका जरूर ध्यान रखें अपने वक्तव्यों में। अपने वक्तव्यों में असंसदीय भाषाओं का प्रयोग न करें। आप ये सिद्ध करें कि भारत का नौजवान उन असंसदीय मान्यताओं में अपना विरोध व्यक्त करता है जो भारत के विकास को रोकता है। बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, sir, for motivating our youngsters. Now, I would like to invite Mr. Mahendrapal Singh, MLA, Pipraich Vidhan Sabha, for sharing his vision on Viksit Bharat. महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय द्वारा आयोजित विकसित भारत युवा संसद 2025 के आज के इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर सुरेंद्र सिंह जी, आज के इस कार्यक्रम में गोरखपुर विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति, सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर के
पूर्व कुलपति प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, प्रमुख परिचालन प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे श्री रणविजय सिंह जी, अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत डॉक्टर राकेश सिंह जी, जिला युवा अधिकारी नेहरू युवा केंद्र श्रीमती सीमा पांडे जी, और हम सबके अभिभावक प्रतिष्ठित साहित्यकार और पूर्व में प्राचार्य रहे डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे जी, और आज के इस कार्यक्रम में महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय के कुल सचिव डॉक्टर प्रदीप राव जी सहित सामने हमारे इस युवा संसद के सभी लगभग 150 जो प्रतिभागी गण हैं, उन सभी का आज के इस कार्यक्रम में मैं दिल से उनका स्वागत करता हूं, उनका अभिनंदन करता हूं। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी जी लगातार भारत को एक विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा करने के लिए निरंतर उनका एक प्रयास है। और जब मोदी जी कोई बात को कहते हैं, जैसे आपने देखा कि 2014 में जब इस भारत से उन्होंने गंदगी को साफ करने के लिए जब संकल्प लिया था महात्मा गांधी के उस 2 अक्टूबर जन्म दिवस के अवसर पर, तो आपने देखा कि कितने अच्छे तरीके से पूरे भारत में गांव-गांव में शौचालय बना करके और पूरे भारत में इस अभियान को सफल बनाया। जबकि विपक्ष के लोग उस समय जब उन्होंने इस बात को कहा था कि हम भारत से गंदगी को साफ करेंगे, तो विपक्ष के लोगों ने बड़ा परिहास उसमें उड़ाया था, ये कैसे संभव है। लेकिन ये सही है, जब आप किसी काम को करने के लिए जब एक संकल्प लेते हैं और जब संकल्प से सिद्धि की तरफ जब आप बढ़ते हैं पूरे मनोयोग से, पूरी ईमानदारी, पूरी निष्ठा के साथ, तो वो कोई भी कार्यक्रम हो वो सफल होता है। तो इसी तरह से मोदी जी ने एक भारत को विकसित राष्ट्र की श्रेणी में खड़ा करने के लिए जिस तरह से 2047 तक यह भारत विकसित राष्ट्र बने, तो उसके क्रम में जो ये युवा संसद का जो आयोजन हो रहा है, उसमें आप सब लोग यहाँ पर आए हैं। इसमें से मैं समझता हूँ कि आप सब इसमें बैठेंगे और चयन करेंगे इन लोगों का कि कौन इसमें अच्छा अपना संवाद कर ले रहा। फिर यहाँ से चयन होकर के जब आप विधानसभा में जाएंगे, वहाँ पर अपनी प्रतिभा को जब वहाँ पर, मैं समझता हूँ वहाँ पर हमारे विधानसभा अध्यक्ष भी बैठे रहेंगे, जब उनके सामने आप अपनी बात को रखेंगे, तो अपनी बातों को रखना क्या है, पूरे भारत से कोने कोने से हर जगह से बच्चे आएंगे। आप पूर्वांचल से जाएंगे और पूर्वांचल में क्या है, उसमें दोनों चीजें होनी चाहिए। मोदी जी की ये सोच है कि आप एक दिशा दें सरकार को, क्या कमी है, क्या अच्छी बात है, क्या कमी है, इन सारी बातों को भी उसमें आपको रखना होगा। और जब आप उन बातों को रखेंगे तो फिर उसमें जो निचोड़ आएगा तो फिर उस पे काम होगा। तो जैसे भारत में युवा शक्ति ज्यादा है और जिस देश में युवा हैं वो देश विकसित भारत उस श्रेणी में न खड़ा हो, यह भी एक विषय है। तो जब युवा हैं यहाँ पर और मोदी जी को पूरा भरोसा है कि हम आपके दम पर, और यह भी सही है कि कोई भी राष्ट्र अगर उसे मजबूत बनाना है तो हमें ग्रामीण अंचल को मजबूत बनाना होगा, क्योंकि भारत का विकास हमारे गांव के खेत और खलिहान से होकर के जाता है, यह भी हमें उसमें देखना होगा। तो आज का जो ये कार्यक्रम आयोजित है, तो मैं सबसे पहले प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूं कि इस तरह के कार्यक्रम आयोजित हो रहे हैं और युवा संसद युवा छात्रों को संसदीय शैली की बहस, चर्चा और निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में शामिल होने के लिए एक मंच प्रदान करता है। ये आयोजन वास्तविक संसद के कामकाज की नकल है। अगर इसमें संसद अगर एक पाई बढ़ा दीजिए तो युवा सांसद भी हो जाएगा। तो युवा संसद का मतलब यह है कि आपको पूरी प्रक्रिया वही रहेगी और यहाँ भी वही माहौल रहेगा। आप अपनी बात रखेंगे, जैसे आपने कहा कि पक्ष और विपक्ष दोनों बातें होंगी। तो ये चीजें जो है
उसमें आपको देखने के लिए मिलेगी। और लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा स्वरूप। आप अगर देखेंगे, अगर तुलना कर लीजिए भारत और चाइना से, चाइना क्या था? हम सब कहते थे कि हिंदी चीनी भाई भाई। और मुझे याद है जब हम सब प्राइमरी में पढ़ते थे तो एक टिकट आता था और हम सब उसको खरीदते थे। वो पैसा कहाँ जाता था? चाइना को जाता था। हिंदी चीनी भाई भाई एक टिकट आता था। इसमें आप लोगों को तो नहीं याद है, लेकिन हम लोगों को याद है। गुरुजी आपको भी याद होगा। और आज चाइना कहाँ है? हम लोकतंत्र में जो हमारी व्यवस्था, मैं वही कह रहा था कि लोकतंत्र सरकार का सबसे अच्छा स्वरूप है। युवा संसद प्रतियोगिता का उद्देश्य छात्र को देश की वास्तविक संसद की व्यवहारिक कार्य प्रणाली से परिचित कराना और उनमें लोकतांत्रिक मूल्यों की स्थापना करना होता है। तो ये आपके भी माध्यम से ये चीजें हो सकती हैं। युवाओं को 2047 तक पूर्ण विकसित राष्ट्र बनाने के भारत के दृष्टिकोण पर अपने विचार प्रस्तुत करने के लिए भी प्रोत्साहित करता है। और मैं चाइना की बात कर रहा था, तो यहाँ तो लोकतंत्र है। लोकतंत्र में प्रजा एक नंबर पर है। प्रजा जैसे हुआ ना कि जो कहीं गलत है अगर आप ठान लें तो उसे चेंज करना पड़ेगा, लेकिन चाइना में ऐसा नहीं है। और आज चाइना कहाँ से कहाँ पहुंच गया। तो हम लोकतंत्र की खूबसूरती को मजबूती से पकड़ करके भी रखें और जो इसमें विकृतियां हैं उसको भी हम पटल पर रखें। और जब उसको अच्छे तरीके से हम रखेंगे तो निश्चित है, जैसा कि मोदी जी ने कहा कि 1 नेशन 1 इलेक्शन, एक राष्ट्र एक चुनाव, ये सही है कि आज आप देखेंगे कि चुनाव प्रतिवर्ष हमेशा चुनाव हो रहे हैं और इसमें जितने धन का अपव्यय हो रहा है, समय का, हमारी सारी फोर्सेस उसमें लगती हैं, तो कई चीजें उसमें बर्बाद होता है। और जब एक साथ चुनाव होगा तो पैसे भी बचेंगे, विकास भी होंगे। और जो मोदी जी का सपना, वही मैं सर से बात कर रहा था, मोदी जी ने कहा कि इस देश को हम 5 ट्रिलियन डॉलर, उसमें उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने कहा कि उत्तर प्रदेश को हम 1 ट्रिलियन डॉलर इकोनॉमी बनाएंगे। लेकिन और भी हमें इसे मजबूत करना होगा। ये मजबूत कब होगा? जब हमारे पास आर्थिक संपन्नता रहेगी। और आर्थिक संपन्नता कैसे होगी? जब हम अपने धन को इस तरह से, जो हमारे बस में है कि हम 1 नेशन 1 इलेक्शन करा करके अपने पैसे को बचा सकते हैं, समय को बचा सकते हैं और हम इस देश को आर्थिक प्रगति के रास्ते पर ला सकते हैं। आज देखिए, भारत किसी का मोहताज नहीं है। सैन्य के क्षेत्र में आप देख लीजिए, भारत पहले दूसरे देशों पर उस पे आश्रित रहता था। आज क्या स्थिति है? आज भारत स्वयं एक से एक हथियार बना रहा है और अपने तो यूज कर रहा है, लेकिन अन्य देशों को भी वो दे रहा है। तो उससे हमारी आर्थिक स्थिति मजबूत हो रही है, हमारे पास डॉलर आ रहे हैं। तो ये जो मोदी जी की सोच है कि हम अपने पैर पर खड़ा हों, अपने को मजबूत करें। और ये मजबूत कब होगा? जब एक एक युवा जब इस देश के बारे में सोचेगा और इस देश को आगे ले जाने के लिए जब कार्य करेगा, तो निश्चित है कि वो सपना साकार होगा। और मैं अभी पढ़ रहा था कि आपने देखा होगा कि जो समान नागरिक संहिता की जो बात हुई थी, वो सबसे पहले भारत में गोवा ने जो है इसे अपनाया था और अब जो है उत्तराखंड ने अपनाया है। क्या कारण है कि अन्य प्रदेश इसको नहीं अपना रहे हैं? और गोवा ने सबसे पहले इसको अपनाया। एक देश में जो है, जब ये आप इसको अंगीकार करेगा जो प्रदेश, तो सबके साथ समान व्यवहार होना चाहिए, चाहे वो किसी जात धर्म का हो। तो ये जो सारी चीजें हैं, जो मोदी जी की सोच है, उसे भी आप आगे लेकर के जाएं उस मंच पर, और तब जाकर के जो मोदी जी की सोच है उसके अनुरूप उनका सपना भी साकार होगा। यह भारत विकसित भारत की श्रेणी में खड़ा होगा, जो 2047 का जो संकल्प है। और 1 नेशन 1 इलेक्शन तो बहुत जरूरी है, ये होने भी चाहिए। और इसी पर मैं समझता हूं कि 2025 का पूरा जो चर्चा है इसी पर होना है। तो इसको आप जितनी मजबूती और जितनी ताकत के साथ आप सब इसको रखेंगे, उसके साथ साथ
आप पूर्वांचल से आते हैं तो पूर्वांचल में और क्या क्या संभावनाएं हैं उसको भी आप उस मंच पर रखेंगे तो मैं समझता हूँ वह सही है कि जैसा कि सर ने कहा कि जो लगभग 60 बच्चे, आप 60 बच्चों की बात कर रहे थे ना, कि आज वो किसी के पहचान के मोहताज नहीं है। तो जो भी बच्चा इसमें अच्छे तरीके से अपनी बात को रखेगा, चुन के जाएगा, तो निश्चित है उसमें कुछ न कुछ तो टैलेंट होंगे। और जो इसमें कहीं असफल होते हैं जो लोग, उनका भी भविष्य उज्जवल है। वो हम कहते हैं सफलता असफलता ये तो जीवन में आते जाते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपने काम के प्रति अगर अच्छे तरीके से आप पूरे मनोयोग के साथ उस लक्ष्य के प्रति अगर उसको प्राप्त करने के लिए निरंतर अगर आप ठान लेंगे तो वो सफलता आपके कदम चूमेगी। इस विश्वास के साथ आप सभी के प्रति, आपके उज्जवल भविष्य के प्रति मेरी शुभकामना। मंच को प्रणाम करते हुए अपनी बात को मैं समाप्त करूंगा। जय हिंद, जय भारत। Thank you so much, sir, for your valuable words. Now, I would like to invite Dr. Surinder Singh, Vice Chancellor, Mahayogi Gorakhnath University and former Drug Controller General of India for presidential speech. Sir, please. Good morning to all of you. On this platform, the land of Guru Gorakhnath, we are honored to have the popular and dedicated member of Legislative Assembly of Pipraij, Shri Mahendra Pal Singh Ji, the former Vice Chancellor of Siddharth University and the present Professor Deen Dayal Upadhyay University, Gorakhpur, Dr. Rajnikant Pandey Ji, who spoke very eloquently, I would say, former Principal Chief Operations Manager of Northeast Railway, Gorakhpur, Shri Ranvijay Singh Ji, the Gorakh Prant President of Akhil Bharatiya Vidyarthi Parishad, Dr. Rakesh Pratap Singh Ji, the former Principal of Kisan PG College, Dr. Ved Prakash Pandey Ji, the District Youth Officer of Nehru Yuva Kendra, Shrimati Seema Pandey Ji, and our very own Registrar, Dr. Pradeep Rao, and other distinguished guests present in the hall, as well as our beloved, all the youth leaders who are present in this audience. A very warm welcome to all of you for today's deliberations on Viksit Bharat Yuva Sansad 2025. The topic we are going to discuss today will not only strengthen our democracy, but can also prove to be a significant step in making India a developed nation. And the topic for today's deliberation, one nation, one election, I think this is the most apt occasion. And there is a saying which goes like this, that nobody can stop an idea whose time has come. And I think the time has come to have this philosophy of one nation, one election actually being practiced in our country after a gap of almost, I would say, more than 50 years. I think after 1967, we have grappled with this issue many times, but once it was there in our country, but now I think again we have to put it in practice over here. And why is it so? Because in today's time, the country is constantly in the midst of elections, as has been told, speaker after speaker has mentioned in his speech. The gap between the elections of the central government, state government, the local bodies is so minimal that it affects the entire process of governance and leads to increase in economic costs, administrative burden, and wastage of resource and time, which could have been very aptly utilized for the development of the country. If we adopt one nation, one election electoral process, there will be less pressure on the administration, and by strengthening the political system, we can save time and focus more on development work, which can transform the country from the present developing nation to a developed nation by 2047, which is the Amrit Kal. The political stability can help create a uniform policy and perspective for the nation. Today's youth are the builders of the future, and they must raise their voices for the societal reforms. The time has come for all of us to understand our responsibility
and rise to the occasion, and we must step forward as determined leaders, and especially the youth, and take the steps towards this momentous change. This is not about any one party or any individual. It is about the future of our nation. If youth wish, nothing can stop India from becoming a developed nation and a global leader by 2047, that is Amrit Kal. The platform we stand as of today is a symbolic of a strong and a aware youth. And all of you present over here, you are representative of this strong will of the nation. From here, we must move towards a new direction and lay down the foundation of bright future for our nation and for the people of the country. Thank you. Thank you, sir, for enlightening us with your golden words. Now, I would like to invite Dr. Ayush Pathak, Assistant Professor, Mahayogi Gorakhnath University, for vote of thanks. हेलो, महायोगी गुरु गोरखनाथ जी के चरणों में शीश नमन करते हुए मैं डॉक्टर आयुष कुमार पाठक आज के इस विकसित भारत युवा संसद 2025 के उद्घाटन समारोह में उपस्थित हमारे मुख्य अतिथि श्री महेंद्र पाल सिंह, माननीय विधायक, पिपराइच विधानसभा गोरखपुर जी का हार्दिक धन्यवाद देना चाहूँगा, जिन्होंने अपनी व्यस्त दिनचर्या से समय निकालकर हमारे कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई। सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले क्रम में प्रोफेसर रजनीकांत पांडे जी, आचार्य दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर एवं पूर्व कुलपति सिद्धार्थ विश्वविद्यालय सिद्धार्थनगर। सर, मैं आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद ज्ञापन करता हूँ। अगले क्रम में डॉक्टर श्री रणविजय सिंह, प्रमुख परिचालक प्रबंधक पूर्वोत्तर रेलवे गोरखपुर, भारत सरकार। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, डॉक्टर राकेश सिंह, प्रांत अध्यक्ष अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद गोरक्ष प्रांत गोरखपुर। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। श्रीमती सीमा पांडे, जिला युवा अधिकारी, नेहरू युवा कार्यक्रम गोरखपुर। मैम, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। प्रतिष्ठित साहित्यकार डॉक्टर वेद प्रकाश पांडे, पूर्व किसान, पीजी कॉलेज सिवराही कुशीनगर। सर, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं हमारे अभिभावक डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, कुलपति महायोगी गोरखनाथ विश्वविद्यालय गोरखपुर का भी हार्दिक धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे कुलपति डॉक्टर प्रदीप राव सर का भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। सर, थैंक यू सो मच। आज के इस कार्यक्रम में उपस्थित समस्त अधिष्ठाता, कार्यक्रम समन्वयक, कार्यक्रम अधिकारी, प्राध्यापकगण, उपस्थित सभी छात्र छात्राओं का मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। Now, I would like to invite the students of Mahayogi Gorakhnath University for Vande Mataram. वन्दे मातरम्। सुजलां सुफलां मलयज शस्य श्यामलां मातरम्। वन्दे मातरम्। शुभ्रज्योत्स्ना पुलकितयामिनी पुल्लकुसुमिता मदनशोभिनी सुहासिनी सुमधुरभाषिणी सुखदां वरदां मातरम्। वन्दे वन्दे मातरम्। कोटि कोटि गन्ध गल गल निनाद गगले कोटि कोटि भुजे हित घर कर वाले अब लागे नुमात भले बाहुबल धरणि नमामि धरणि रिपुदल वरणि मातरम्। वन्दे
वन्दे